After fourth, an electron microscope uses a beam of fast electron that are focused by electric and magnetic field to produce a large image of thin specimen on a screen of photographic plate. Find resolving power of electron microscope which uses 15 keV electron. By assuming this equal to electron wavelength. देखिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी है 15 keV. इलेक्ट्रॉन की यह काइनेटिक एनर्जी है. एनर्जी हमेशा काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में होती है. सो दिस इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन 15 into 3 eV. काइनेटिक एनर्जी is equal to mv square is equal to 15 into 10 to the power 3 into 1.6 into 10 to the power minus 19 joules. मैं मास से मल्टीप्लाई डिवाइड करता हूं mv स्क्वायर को. mv होल स्क्वायर अपॉन m is equal to 2 into 15 into 10 to the power 3 into 1.6 into 10 to the power minus 19 joules. इस तरह से हमें मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन पता लग गया. मोमेंटम स्क्वायर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 2 into 15 into 10 to the power 3 into 1.6 into 10 to the power minus 19 और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाई कर देता हूं 9.1 into 10 to the power minus 31. Momentum is h upon lambda. तो इधर से हमें लैम्डा स्क्वायर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता लग गया. इट्स एच स्क्वायर 6.626 into 10 to the power minus 34 whole square upon this term 2 into 15 into 10 to the power 3 into 1.6 into 10 to the power minus 19 into 9.1 into 10 to the power minus 31. This is the lambda square of electron. This is de Broglie wavelength of electron. De Broglie wavelength is under root of this quantity 6.626 into 10 to the power minus 34 whole square upon 30 into 1.6 into 9.1 into 10 to the power 3 minus 50 minus 47. यह de Broglie wavelength. अब resolving power of microscope या टेलीस्कोप हमने 1.22 lambda by d या 1 resolving power उन्हें साफ साफ कह रहा है for the resolving power of electron microscope which uses 15 keV electron by assuming it to be equal to electron wavelength. उन्हें साफ साफ कह रखा है resolving power is equal to the de Broglie wavelength of electron and hence this is the answer. जो इस इलेक्ट्रॉन का de Broglie wavelength है वही resolving power है. उन्हें प्रॉब्लम में assumption दे रखा है find resolving power of electron microscope by assuming that this is equal to the electron wavelength. तो जो इलेक्ट्रॉन की de Broglie wavelength आई वही resolving power. DPS नंबर 1 में इस प्रॉब्लम के अलावा कुछ ऑब्जेक्टिव्स भी हैं और कोई डाउट हो तो फटाफट पूछो, अदरवाइज हम DPS नंबर 2 डिस्कस करना चालू करते हैं.
22। किसका? 1 का या 2 का? 2 का। 2 का 22। इसके अलावा 15। Beside that, question number 6. Beside that, Number 5th. Beside that, चलिए 22nd प्रॉब्लम करते हैं. Electric field associated with monochromatic beam becomes 0 1.2 into 10 to the power 15 times. Electric field 1.2 times per second 0 होती है. अब देखिए, किसी भी वेव के दौरान इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस टाइम यदि हम देखें तो एक वेव में 2 बार इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है. किसी भी एक वेव में 2 बार इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है हमेशा. ये एक वेव हुई है और इसमें 2 बार इलेक्ट्रिक फील्ड 0 थी. जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी न्यू वुड बी 1.2 into 10 to the power 15 divided by 2 hertz. यह फ्रीक्वेंसी आ गई. हो गया. अब उन्होंने पूछा फाइंड मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन. तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इज गिवन बाय h nu minus work function. Maximum kinetic energy of photoelectron is h की जगह 6.626 into 10 to the power minus 34. न्यू की जगह पर फ्रीक्वेंसी हमने ऊपर लिख दी है और ईवी में हमें आंसर देना है. ये जूल्स में आया है, इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइडेड बाय 1.6 into 10 to the power minus 19. यह ईवी हो गया माइनस वर्क फंक्शन की जगह 2.0 ईवी. एंड दिस 22nd प्रॉब्लम हम 15th प्रॉब्लम करेंगे. Two neutral particles are kept 1 meter apart. Suppose by some mechanism some charges transfer from one particle to another and electric potential energy lost is completely converted into a photon. Calculate the longest and the next smallest wavelength of the photon. देखिए, ये दोनों न्यूट्रल पार्टिकल और बाय सम मैकेनिज्म चार्ज एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल की तरफ ट्रांसफर करते हैं तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ. नाउ चार्ज इज क्वांटाइज्ड. मतलब जब भी पार्टिकल पर चार्ज होगा तो हमेशा प्लस एनी माइनस एनी के टर्म्स होगा. मिनिमम चार्ज जब हम ट्रांसफर करने जाएंगे तो एक चार्ज को जब हमने इधर ट्रांसफर करा तो इधर प्लस ई चार्ज आएगा और इधर माइनस ई चार्ज आएगा. This is the minimum potential energy condition. ये मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी कंडीशन है और यह पोटेंशियल एनर्जी जब 0 होगी तब मिनिमम एनर्जी रेडिएट होगी, तब मैक्सिमम वेवलेंथ रेडिएट होगी. फॉर मैक्स वेवलेंथ change in potential energy is 1 by 4 pi epsilon naught plus E minus E by R minus 0. And this is equal to hc by lambda 1. This is the first longest wavelength. अब मैं इसको लिख देता हूं 9 into 10 to the power 9 1 by 4 pi epsilon naught की जगह
प्लस ई माइनस ई, ये जूल्स में होएगा। इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए एक ई जूल्स को मैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिख देता हूं, तो सिर्फ एक ई रह जाएगा अपॉन आर की जगह पर 1 मीटर। नाउ दिस इज ईवी, दिस इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा। एच सी बाय लैम्डा, एच सी वर्मा 12 नंबर का 420, एच सी की वैल्यू 12420 अपॉन लैम्डा 1 in Armstrong. This is the first longest wavelength. अब next smaller wavelength for next smaller wavelength एक और इलेक्ट्रॉन इधर से ट्रांसफर करा, तो इधर 2e इधर -2e। इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? 1/4πε0 प्लस 2e माइनस 2e बाय r -0। दिस इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा 2। मैग्नीट्यूड से मतलब, उसको साइन वाइन से कोई मतलब नहीं है, तो इधर अब मैं लिखूंगा 9 इंटू 10⁻9 इंटू 4 into 1.6 into 10 to the power minus 19 electron volt is equal to 12420 upon lambda 2 in Armstrong. This is the next smaller wavelength. The 15th problem. Now we will solve 6th and 5th problem. Now let's continue discussion of 6th problem. Electron in hydrogen-like atom make transition from 5th to 4th orbit and from 4th to 3rd orbit. This 3rd, this 4th and this 5th. 5th से 4th पर और 4th से 3rd पर. The resulting radiation are incidented normally on metal plate and eject photoelectron. The stopping potential of photoelectron ejected by shorter wavelength is this. Calculate work function of metal and stopping potential of photoelectron ejected by longer wavelength. तो shorter wavelength तो होगी 4 to 3 वाली, क्योंकि 4 से 3 में एनर्जी का डिफरेंस ज्यादा होगा, इसलिए एनर्जी ज्यादा होगी, इसलिए शॉर्टर वेवलेंथ होगी। और शॉर्टर वेवलेंथ 4 to 3, डेल्टा E is 13.6 into 1/9 minus 1/16 into 1 square electron volt, and this is delta E. अब उन्होंने कहा है स्टॉपिंग पोटेंशियल इज 3.95 वोल्ट। अब हम इक्वेशन लिखते हैं, दिस इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा। EVSP is HC by lambda माइनस वर्क फंक्शन। अब स्टॉपिंग पोटेंशियल उन्होंने 3.95 वोल्ट देखा, तो EVSP लिख दो 3.95 EV, और HC by lambda की जगह यह लिख दो 13.6 into 7/9 into 16 minus work function. From here we'll get the work function as 13.6 into 7 upon 9 into 16 minus 3.95 EV. यहां वर्क फंक्शन आ गया। अब उनने पूछा कैलकुलेट वर्क। अब स्टॉपिंग पोटेंशियल फॉर लॉन्गर वेवलेंथ। अब लॉन्गर वेवलेंथ के लिए
for longer wavelength means less energy, और less energy होगी 5 से 4 की। इसके लिए मैं डेल्टा ई कहूंगा, डेल्टा ई इज 13.6 इंटू 1/16 माइनस 1/25 इंटू 1 स्क्वायर EV, and this is equal to HC by lambda dash. Once again, EV SP dash is equal to HC by lambda dash minus work function. So EV SP, the new exponential, HC by lambda will do 13.6 into 625 minus 16 is 9 upon 16 into 25 माइनस वर्क फंक्शन की जगह यह लिख दो 13.6 इंटू 7 बाय 9 इंटू 16 माइनस 3.95 EV. There is a new storing potential. Now let's solve fifth problem. When a surface is irradiated with light of wavelength 4950 Armstrong, a photocurrent appears which vanishes if retarding potential is greater than 0.6 volt, means stopping potential is 0.6 volt. क्योंकि इस पर्टिकुलर पोटेंशियल पर करंट वैनिशेस हो जाता है, मतलब करंट जीरो हो जाता है, मींस दिस इज अ स्टॉपिंग पोटेंशियल. अब व्हेन डिफरेंट लाइट सोर्सेस यूज्ड, अब पहले तो इसी से कंक्लूजन लगा लेते हैं, इससे हमें वर्क फंक्शन पता लग जाएगा. EV SP इज इक्वल टू HC बाय लैम्डा माइनस वर्क फंक्शन. EVSP की जगह 0.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, HC की वैल्यू लिखता हूं 12 नंबर का 420 अपॉन 4950 आर्मस्ट्रॉन्ग, दिस मच EV माइनस वर्क फंक्शन. इससे मुझे वर्क फंक्शन मिल जा रहा है 12420 अपॉन 4950 माइनस 0.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. यहां वर्क फंक्शन आ गया. When a different light source is used, it's found that critical retarding potential changed to 1.1 volt. Find work function and the wavelength. वर्क फंक्शन तो हमने निकाल ही दिया. अब लैम्डा डैश हमें निकालना है. जब स्टॉपिंग पोटेंशियल लैम्डा डैश के लिए हो गया 1.1 EV. वंस अगेन यही कंसेप्ट लगाऊंगा. EVSP डैश, स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ जाएगा, चेंज हो जाएगा जब वेवलेंथ की वैल्यू चेंज हुई, मगर वर्क फंक्शन चेंज नहीं होएगा. इधर मैं लिखूंगा 1.1 EV इज इक्वल टू HC की जगह 12 नंबर का 420 अपॉन लैम्डा डैश इन आर्मस्ट्रॉन्ग माइनस वर्क फंक्शन की जगह लिख दूंगा 12420 अपॉन 4950 माइनस 0.6. इधर से लैम्डा डैश इन आर्मस्ट्रॉन्ग हो जाएगा. फाइंड वर्क फंक्शन ऑफ एमिटिंग सरफेस वेवलेंथ ऑफ सेकेंड सोर्स. ये पहला पार्ट हो गया. इफ फोटो इलेक्ट्रॉन आफ्टर एमिशन फ्रॉम द सरफेस आर सब्जेक्ट टू मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 10 टेस्ला, what change will be observed in above two retarding potential. अब हम कहते हैं भाई मैग्नेटिक फील्ड लगाने से जो इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहा है वह सिर्फ सर्कुलर पाथ में जाएगा. मैग्नेटिक फील्ड यदि आपने लगा रखी है तो उस मैग्नेटिक फील्ड में एमिटेड इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ या फिर हेलिकल पाथ में जा सकता है, मगर उससे
रिटार्डिंग पोटेंशियल पर, दोनों ही रिटार्डिंग पोटेंशियल पर कोई फर्क नहीं पड़ना है. So there won't be any change in the value of retarding potential due to the application of magnetic field. The magnetic field would simply make the trajectory of electron either circular or helical. It won't change the retarding potential. DPS2 में और कोई डाउट है तो पूछ लीजिए. अब हम DPS3 का डिस्कशन करते हैं. लेट्स कंटिन्यू. चलिए हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में चलते हैं. पहले फर्स्ट ही सॉल्व करते हैं फिर. अब व्हेन अ photon of energy hc by lambda 4.25 eV strikes a surface of metal A have maximum kinetic energy Ta and d Broglie wavelength lambda है. देखिए यह मेटल A है जिसका वर्क फंक्शन फाई A. हम कहेंगे Ta kinetic energy is hc by lambda माइनस फाई ए. और ये जो काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ mv स्क्वायर. काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर और हाफ p स्क्वायर बाय m और h बाय लैम्डा होल स्क्वायर बाय m और h स्क्वायर बाय m इंटू लैम्डा ए स्क्वायर. इस तरह से हम डी ब्रोगली वेवलेंथ लिख सकते हैं. And the maximum kinetic energy of photoelectron liberated from another metal B by a photon. इसको मैं TA को कुछ इस तरह से भी लिख देता हूं. TA is equal to 4.25 minus phi A is equal to h square by m into lambda A square. अब दूसरे मेटल बी के लिए टीबी इज फोटोन ऑफ एनर्जी. इस पर 4.70 फोटोन की एनर्जी 4.70 है माइनस पाई बी इज इक्वल टू h स्क्वायर बाय m इंटू lambda b स्क्वायर. अब if d Broglie wavelength of this two photoelectron lambda b is equal to 2 times lambda a. उन्हें डेटा दे रखा है tb is equal to ta minus 1.50 और Ta minus Tb is equal to Ta minus Tb is 1.50 और दूसरा डेटा दे रखा है lambda b is equal to 2 lambda a. Then अब उसे उन्हें इसके बाद कुछ डेटा पूछा था. तो लेट्स अप्लाई दिस कंडीशन. Ta minus Tb, Ta minus Tb करता हूं मैं. Ta minus Tb तो दिस माइनस दिस करूंगा तो दिस वुड बी 1.50 इज इक्वल टू h स्क्वायर बाय m इंटू lambda a स्क्वायर माइनस lambda b स्क्वायर. फर्स्ट ऑफ ऑल दिस. नाउ अब lambda b स्क्वायर lambda b इक्वल टू 2 lambda है. मैंने इधर थोड़ी सी गलती कर दी. इधर 1 अपॉन है तो इधर भी मुझको 1 अपॉन और 1 अपॉन करना है. 1 अपॉन lambda a स्क्वायर माइनस 1 अपॉन lambda b स्क्वायर. अब
यह कंडीशन अप्लाई कर देता हूं। लैम्डा बी इज 2 टाइम्स लैम्डा ए, तो 1.50 इज इक्वल टू एच स्क्वायर बाय एम इंटू इधर 4 लैम्डा ए स्क्वायर हुआ, तो 3/4 इंटू 1 अपॉन लैम्डा ए स्क्वायर। तो 4/3 इंटू 1.50 इज इक्वल टू एच स्क्वायर बाय एम इंटू 1 अपॉन लैम्डा ए स्क्वायर। एच स्क्वायर अपॉन एन लैम्डा ए स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू टी ए। दिस इज टी ए, और यह टी ए दिखने लगा मुझको 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। टी ए 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिखने लगा। अब टीबी दिखने लगा, इससे टीबी हो जाएगा 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इससे फाइ ए आ जाएगा। टी ए यदि 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो फाइ ए आ जाएगा 2.25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फाइ ए 2.25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दस -2। फिर फाइ बी भी आ जाएगा, फाइ बी हो जाएगा, टीबी इज 0.5, तो 0.5 है 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फाइ बी इज 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब जो चीज पूछिए देख लो, वर्क फंक्शन ऑफ बी दिख रहा है मुझको, टीबी टी ए दिख रहा है मुझको, और वर्क फंक्शन दिख रहा है, मार्क कर दीजिए। बड़े ध्यान से पूरे प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को अब एक बार देखिए। फिफ्थ प्रॉब्लम का